Assalamualaikum. This is me, Ghulam Murtaza, Basic Electronic BSIT, first semester IT section B. Today we will perform the lab number 4 on Proteus. Title of lab number 4 is IV characteristics of silicon diode. I means the current characteristics, V means voltage characteristics of a silicon diode. How the current and voltage across a silicon diode varies. What is the relationship between the current and voltage? So this will we will describe in this lab and we will perform it practically. Before this we will revise the semiconductor. What is a semiconductor? Word semi means half or partially. It is half of the conductor. It means such a material whose half of the properties resembles with the conductor and half of the properties resembles with insulator. And there are two types of the semiconductor. First semiconductor are pure means in which there is no any kind of bonding. They are pure, they are in elemental form, either it is silicon, germanium or whatever, but they are in pure form. There is no impurity. Such a semiconductor or a pure semiconductor is known as intrinsic semiconductor. But when we create a bond between a semiconductor with group 3 or 5 element, it means we are going to add the impurity, and the process of adding impurities to a pure semiconductor or a process of adding impurities to an intrinsic semiconductor is known as doping. This process is known as doping, and a semiconductor which is obtained after this process, that semiconductor is known as extrinsic semiconductor, and such material are known as doped material. यानी हम कहते हैं कि एक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो बिल्कुल एलिमेंटल फॉर्म में हैं, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया, वो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। फिर हम एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर जो कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके साथ ग्रुप थर्ड और फिफ्थ के बॉन्डिंग बनाते हैं, और जब बॉन्ड बनाते हैं हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि हम उसमें इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, और इम्प्योरिटी डालने वाले प्रोसेस का नाम डोपिंग है। यानी इन अदर वर्ड्स हम डोपिंग कर रहे हैं। तो डोपिंग करने के बाद जो हमें डोप्ड मटेरियल या डोप्ड सेमीकंडक्टर मिलेगा, उस डोप्ड सेमीकंडक्टर का नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद कुछ हम टर्म्स यहाँ पर नोट लिखती हैं, लेकिन उनको डिफ़ाइन नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़. Trivalent impurities are those impurities which belong to group 3, and they are boron, aluminum, gallium and indium. And trivalent impurities have 3 valence electrons. Pentavalent impurities means those elements which are going for the bond and they belong to the group 5th. They are known as pentavalent impurities. Pentavalent impurities have 5 electrons in their valence shell. We have two types of impurities as a trivalent and pentavalent. Therefore we have also two types of doping. In a higher sessions we will read there are 3 types of doping. First doping is p type or positive type doping, second is n type or negative type doping, and third one is amphoteric doping. But in graduation level, at this level we will learn only 2, that is what is p टाइप डोपिंग एंड व्हाट इज़ n टाइप डोपिंग। तो अब देखिएगा कि हमारे पास एक सिलिकॉन उठाते हैं, एक सिलिकॉन के साथ जब ग्रुप 3 का बॉन्ड बनाएगा, ग्रुप 3 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, टोटल उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, उस वैकेंसी का नाम, उस वैकेंट स्पेस का नाम, उस डिफिशेंसी का नाम जो है हम कहते हैं कि दिस इज़ अ होल। हम कहते हैं होल जो है वो एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं होता, उसको कंसीडर किया जाता है कि वो पॉजिटिव है। उसको कंसीडर इसीलिए किया जाता है क्योंकि होल ऑफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन उसके पास आए, इलेक्ट्रॉन आए और वो वैकेंसी फिल कर जाए। इसीलिए होल जो होता है, होल का बिहेवियर पॉजिटिव बिहेवियर होता है। और जब आपके पास ग्रुप 4 सेमीकंडक्टर जो हैं उनके साथ ग्रुप 5 के एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे,
तो ग्रुप 5 के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, सेमीकंडक्टर के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो वहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होगी। इसके बाद हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जब सेमीकंडक्टर और पी टाइप आपस में बॉन्ड बना रहे थे, वहाँ पर एक वैकेंसी, एक होल क्रिएट हो रहा था। इस तरह से जब आप बिलियंस ऑफ द सेमीकंडक्टर उठा के बिलियन ऑफ द ग्रुप 3 के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो आपको बिलियन होल्स मिलेंगे। और बिलियन होल्स का मतलब ये है कि वहाँ पर बिलियन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होंगी। सेम अगर एन टाइप के साथ हमारे पास जो है 5th ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो 5th हमारे पास मिलियन ऑफ द सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जब मिलियन ऑफ द 5th ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पर मिलियन ऑफ द नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर उठा के उसमें से एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, उसमें से एक एन टाइप। पी टाइप मींस पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर जिसमें मैं कह रहा हूँ बिलियन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। यानी इन अदर वर्ड्स ग्रुप 3 के साथ बॉन्ड बनाने के पास जो डोप हमारे पास सेमीकंडक्टर आया दैट इज़ पी टाइप, और जो हमारे पास 5th ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने के बाद आया दैट इज़ एन टाइप, एन या नेगेटिव टाइप। हमारे पास पी टाइप में जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो कैरियर जो मेजॉरिटी में हो, जो अक्सरियत में हो, वो चार्ज कैरियर मेजॉरिटी कहलाते हैं। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सेम माइनॉरिटी चार्ज के अगर पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं तो वहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। सेम इन एन टाइप। तो आप देखिए यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पे 2 फिगर दिखाई देंगी। फिगर ए की तरफ जाइए, फिगर ए को देखिए। फिगर ए में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर रेडी किया और एक एन टाइप। अब हम उन दोनों को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक पी टाइप और एन टाइप को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो उसकी ज्वाइनिंग लाइन, ये ज्वाइनिंग पॉइंट या कनेक्टिंग पॉइंट जो होता है उसका नाम जंक्शन कहलाता है। यानी जंक्शन आपने मोस्टली सुना होगा, रेलवे में कोई भी जंक्शन तब बनता है जब वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रैक्स आपस में मिल रही होती हैं। तो यहाँ पर भी जब पी और एन मिल रहे हैं तो उनकी जो मीटिंग लाइन है जो दोनों को कंबाइन कर रही है, जो कॉमन पार्ट है दोनों का, उस लाइन का नाम है जंक्शन। यहाँ पर एक जंक्शन बन गया। अब इस जंक्शन का हम नाम रख लेते हैं दिस इज़ पी एंड एन जंक्शन, बिकॉज दिस इज़ अ जंक्शन बिटवीन अ पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल। अब होगा क्या, अब पी टाइप में बहुत ज़्यादा होल्स हैं इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों में अपोजिट चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से उठकर पी टाइप की तरफ चले जाएंगे और पीछे प्लस साइन छोड़कर जाएंगे। जो एन टाइप पे प्लस साइन है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था जो अब अपनी स्पेस छोड़कर चला गया, यानी दिस इज़ अ वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। सेम जब होल एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होकर एन टाइप में चला जाता है तो पी टाइप पे पीछे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपको फिगर बी में क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो वी हमारे पास पोटेंशियल है, इसके अंदर जो चार्जेस स्टोर हैं, पी टाइप पे नेगेटिव चार्जेस है और एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज है। पी टाइप पे नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि यहाँ पर होल्स थे जो एन साइड पे शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और होल की वैकेंसी को माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब एक दूसरे की तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होल की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे इनकी फर्दर जो होती है मूवमेंट होगी, ट्रांसफरेंस होगी, वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि आप फिगर बी की तरफ देखिएगा, फिगर बी में जैसे ही होल्स एन साइड की तरफ मूव करेगा तो एन साइड पे वॉल पे ऑलरेडी प्लस चार्जेस मौजूद हैं। वो प्लस चार्जेस जो पी टाइप से पॉजिटिव चार्जेस होल्स आएंगे उनको रिपेल करेंगे और एन की जो ट्रांसफरेंस होगी वो स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह इनके बीच में पी टाइप और एन टाइप के कैरियर जो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे की तरफ मूव हो रहे थे, एक दूसरे की तरफ फ्लो हो रहे थे, जिसकी वजह से एक छोटा सा करंट प्रोड्यूस हो रहा था जिसको हमने मोमेंटरी करंट कहा था, और वो मोमेंट के लिए पैदा होकर ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जब ख़त्म हो गया था तो अब इन चार्जेस के बीच में एक बैरियर आ गया है और एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। तो इस पोटेंशियल को कहते हैं कि दिस इज़ बैरियर पोटेंशियल या कांटेक्ट पोटेंशियल। जो फिगर बी में लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है वी बी, दिस इज़ द बैरियर पोटेंशियल। कीप इन माइंड कि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है या वोल्टेज होता है वो करंट को फ़्लो करने में सपोर्ट करता है।
हम यही देख रहे थे ओमला में। ओमला कहता है कि जितना आपके पास वोल्टेज होगा उतना ही करंट होगा, यानी इन अदर वर्ड्स वोल्टेज सपोर्ट कर रहा है करंट को। लेकिन यहाँ पर जो डायोड के इंटरनल वोल्टेज है, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल कह रहे हैं, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कह रहे हैं, तो ये हमारे पास सपोर्टिंग नहीं बल्कि ये अपोजिंग है। ये अपोजिंग इसलिए, पहले तो करंट फ्लो हो रहा था, जब ये पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसके बाद हमारे पास करंट का फ्लो होना स्टॉप हो गया है। तो दिस इज़ नॉट सपोर्टिंग वोल्टेज बट दिस इज़ अपोजिंग वोल्टेज, देयरफॉर वी कॉल सच पोटेंशियल एज अ बैरियर पोटेंशियल और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, एंड दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड। द बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज़ 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इज़ 0.3 वोल्ट। राइट साइड पे आइए। राइट साइड पे आप देखेंगे आपको जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम दिखाई देगा और एक पी टाइप है, पी साइड है, पी टाइप मटेरियल है। पी मतलब कि प्लस, और प्लस टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं, और एन टाइप का मटेरियल यानी नेगेटिव साइड, एन मींस नेगेटिव, और नेगेटिव साइड को कैथोड कहते हैं। और ये डायोड की फिगर बी में सिंबल है आपके पास, तो आपको ये मालूम होना चाहिए वर्टिकल साइड जो है वो कैथोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद हम बाइसिंग की तरफ जाते हैं। हमें पता है बाइसिंग 2 टाइप्स की होती है। वर्ड बाइस का मतलब होता है जब हम डायोड को किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, वो बाइसिंग कहलाता है। बाइसिंग 2 तरह की होती है, एक बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, एक बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग होती है। लेफ़्ट साइड पे जो आपको बाइसिंग नज़र आ रही है, सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब पी टाइप जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एन टाइप का मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, इन अदर वर्ड्स ट्रू कनेक्शन हो, तो ये आपके पास जो बनेगा फॉरवर्ड बाइसिंग बनेगी। आप बैटरी के प्लस चार्ज पी टाइप के चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लेकर आएंगे। जब आपके पास देखिएगा बैटरी के साथ जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पे भी प्लस चार्जेस हैं, होल्स पे भी प्लस चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि से अपोजिट चार्जेस हैं। तो अब जब रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस किसकी तरफ जो होगा डोमिनेंट होगा, तो बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा डोमिनेंट होगा, यानी बैटरी की जो प्लस चार्जेस आ रहे हैं वो ज़्यादा हावी होंगे। तो जो हमारे पास प्लस चार्जेस इन पी टाइप मटेरियल है उनको वो मूव करके दीवार के साथ लेकर जाएंगे, डिप्लीशन रीजन की तरफ लेकर जाएंगे, जहाँ पर बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ था। तो जो अंदर लेयर बनी हुई है जिसमें प्लस माइनस पड़ी हुई है, दिस इज़ डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन रीजन को धक्का देंगे। सेम जब हमारे पास बैटरी से नेगेटिव चार्जेस आएंगी, एन साइड पर नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों रिपेल करेंगी। किसकी तरह ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, तो बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है, ये जो है हमारे पास एन टाइप की चार्जेस हैं उनको मूव करेंगे डिप्लीशन रीजन की तरफ। तो इस तरह हमारे पास डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाएगा और चार्जेस अगेन एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होना फ्लो हो जाएंगी और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास गुड करंट फ्लो कर रहा होता है और डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है। आइए सेकंड बाइसिंग की तरफ। दिस इज़ रिवर्स बाइसिंग। इनमें हम फास्ट कनेक्शन करते हैं, पी टाइप एन नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, एन टाइप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने फास्ट कनेक्शन किए, अपोजिट हमारे पास चार्जेस आई, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो अब क्या होगा, कौन किसकी तरफ डोमिनेंट होगा, ज़ाहिर सी बात है बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो चार्जेस ज़्यादा डोमिनेंट होंगी। अब पी टाइप से होल को खींचकर अपनी तरफ लेकर आएंगी। जब पी टाइप वाले होल बैटरी की तरफ आएंगे तो डिप्लीशन लेयर के साथ जो चार्जेस पी टाइप की पड़ी हुई हैं वो चार्जेस बैटरी की तरफ मूव होंगी और डिप्लीशन रीजन पी साइड से थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। सेम जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेकर आएगा, अट्रैक्ट करके लेकर आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हुए बैटरी की तरफ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन के साथ चिपके हुए थे वो भी बैटरी की तरफ भाग कर आएंगे। इसी तरह डिप्लीशन रीजन दोनों तरह से वाइड हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन जो होता है वो वाइड हो जाता है, जिसकी वजह से कोई चार्ज एक दूसरे की तरफ फ्लो नहीं कर सकती और हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में करंट भी ज़ीरो होता है। ये आपको एक फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का जनरल डायग्राम दिखाई दे रहा है कि देखें आपके पास रिवर्स बाइस नेगेटिव एक्सिस पे है और आपके पास सबसे पहले देखिए ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आपके पास वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे करंट की वैल्यू है। तो एक्स एक्सिस
आपको पता होना चाहिए लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव होता है। तो राइट साइड पे शुरू में देखिए जैसे वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, एक्स एक्सिस की तरफ जो होता है ना वोल्टेज बढ़ती जा रही है, वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ। ब्लू लाइन अगेन जो है बिल्कुल ज़ीरो पे है, लेकिन एक सडन एक सा मोमेंट आ रहा है जिसमें ब्लू लाइन आपको राइट साइड पे जो है वो थोड़ा सा ऊपर मूव होता शुरू नज़र आएगा। तो जिस पॉइंट से आपके जिस वोल्टेज पे आपको ब्लू लाइन स्टार्टअप होती हुई नज़र आ रही है, तो उस पॉइंट को कहते हैं दिस इज़ नी पोटेंशियल। ये हमारे पास नी पोटेंशियल है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जिससे हमारे पास डायोड कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो पहले डायोड हमारे पास पता है कि अंदर बैरियर पोटेंशियल है, जब तक उस बैरियर को नहीं तोड़ेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए बैरियर को तोड़ने में पहले वोल्टेज हम अप्लाई भी कर रहे थे लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा था। करंट का अचानक से फ्लो हो गया है, वो तब फ्लो हुआ जब बैरियर टूटा। और फिर आप लेफ़्ट एक्सिस पे देखें वोल्टेज की कि जितनी भी हम वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हैं तो हमें करंट की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है रिवर्स बायस में, क्योंकि आपको लेफ़्ट साइड पे कोई भी ब्लू लाइन ऊपर की तरफ करंट एक्सिस की तरफ शो नहीं होगी, जिसका मतलब है कि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता। अब इसका एग्ज़ैक्ट जो डायग्राम है वो ये है, आप देखें यहाँ पर वोल्टेज VF फॉरवर्ड वोल्टेज है और VR आपको लेफ़्ट साइड पे VR नज़र आएगा, दिस इज़ रिवर्स वोल्टेज एंड VF फॉरवर्ड वोल्टेज। आप देखें यहाँ पर रीडिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 और फिर जाके आपको 7 और 6 के बीच में एक लाइन नज़र आएगी, जिसका मतलब है दिस इज़ सॉरी ये एग्जैक्ट भी नहीं है, 1 2 3 भी नहीं है, दिस इज़ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 एंड 0.7। तो आपको पता है कि यहाँ अगर इस सिलिकॉन डायोड की बात करें तो 0.7 पे स्टार्टअप होता है, तो वहाँ पर एग्जैक्टली जो है ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो जहाँ से ब्लू लाइन आपकी स्टार्ट हो, जहाँ से एक डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करे, वो पॉइंट कहलाती है नी पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। एक मतलब डायोड की डिप्लीशन रीजन टूट जाए, उसके बाद जितना आप करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। रिवर्स एक्सिस पे आप देखिएगा रिवर्स वोल्टेज में, रिवर्स बायस में शुरू में आप जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं करंट बिल्कुल ज़ीरो ही है। फिर सडन एक ऐसा मोमेंट आता है जिसमें आपके पास देखिए बिल्कुल एक ह्यूज वर्टिकल लाइन डाउन की तरफ नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि रिवर्स बायस में हम रिवर्स बायस अप्लाई करते जाते हैं, डिप्लीशन रीजन बढ़ता एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन का साइज़ है वो बिल्कुल डिवाइस के साइज़ के इक्वल हो जाता है। तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि ये इफ़ेक्ट पंच थ्रो इफ़ेक्ट कहलाता है, और वहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज अपीयर होती है उस वोल्टेज को कहते हैं दिस इज़ ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये हमारे पास एक आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसमें हम कहते हैं उसके अंदर कोई बैरियर नहीं, जिसके अंदर कोई उसके कॉन्टैक्ट पोटेंशियल नहीं, आप ज़ीरो वोल्टेज पे भी उसको कंडक्ट करवा सकते हैं। अब देखिए ये जो है इसका ग्राफ देखिए, IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ज़ीरो से बिल्कुल ब्लू लाइन ऊपर जा रही है। इट मीन्स ये ज़ीरो पे ही कंडक्ट करना स्टार्ट कर गया है, ज़ीरो पे इसका करंट फ्लो होना स्टार्ट कर गया है। और रिवर्स बायस में आइडियल डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं करता। आइडियल डायोड की ऐसी ये डेफिनेशन है कि आइडियल डायोड एक ऐसा डायोड है जिसका बैरियर पोटेंशियल ज़ीरो है, जो ज़ीरो पे कंडक्ट करता है, जो ज़ीरो वोल्टेज पे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है जिसमें से, और रिवर्स बायस में जितनी भी वोल्टेज अप्लाई करें आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं होता। ये आइडियल ही है, कोई डायोड ऐसा नहीं हो सकता जिसका बैरियर ज़ीरो हो, जो रिवर्स बायस में जितनी भी वोल्टेज अप्लाई करें करंट को ना फ्लो करवाएं। क्योंकि हमने इससे पहले भी डायग्राम में देखा था जब बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करें तब करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये डायोड आइडियल डायोड है तो इसमें कोई करंट रिवर्स बायस में फ़्लो नहीं होगा। ये आपने लेव 4 में करना है। लेव 4 में आपने एक डायोड उठाना है, सिलिकॉन डायोड उठाना है, सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगाना है। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं क्योंकि हम पीछे से ऐसे ना हो सप्लाई वोल्टेज जैसे बढ़ाते जाएं तो डायोड जल जाए, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए सीरीज़ में हम रेजिस्टर लगा लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, एक अमीटर लगा लेते हैं कि पूरे सीरीज़ का करंट मेजर करें। तो पीछे से वोल्ट्स अप्लाई करेंगे और ये जो वोल्ट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा रीडिंग आपने लेनी है। ये पहले 0.1 अप्लाई करना है, फिर 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 चलते आपने ये वोल्टेज 2.5 वोल्ट तक अप्लाई करने हैं। तो ये सप्लाई वोल्टेज आपने जब अप्लाई करेंगे आपने क्या क्या चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि हमारे पास जो रजिस्टर है उसके पास कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और टोटल सीरीज़ करंट क्या है। इसका हम प्रोटिया सिमुलेशन आपको पार्ट 2 में दिखाते हैं, तो आप इसका